Have you ever had a heartbreak? We all have, na? Have you? Attachment na is a very scary thing. You cannot feel that somebody else is filling a void in your life. राकुलप्रीत सिंह, जो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जानी जाती हैं, सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। हम आज इनसे जानेंगे उनके फिल्म करियर, फिटनेस जर्नी एंड एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जा सकता है इस चीज के बारे में। How did he propose you? When I met Jackie, I said कि I'm happy as a person, you're happy as a person. Either one of us are not responsible कि तुमको ये करना है तो तुम खुश होगे। वैसा नहीं होता है। Together we're just happier. अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद है and if Jackie talks to him or her, are you okay? रोक के मैं क्या कर लूंगी ना, वो फिर छुप के बात करेगा। हम लोग दो individuals हैं जो साथ में आए। That doesn't mean that either one of us has to ever feel कि यार हम trapped हैं। Research पढ़ रहा था. After marriage, only 20% people are more satisfied, 80% people are dissatisfied. Because modern day relationships में ऐसा हो रहा है कि पहले लोगों के पास पूरी एक विलेज होती थी to go to. Now there is more and more expectation सिर्फ एक ही इंसान से. वो सारी expectation पूरी नहीं कर सकता तो आपको dissatisfied. Oh really? How is female friendship different than male friendship? Women converse on more emotional basis. They can share a lot more than what a man would share. Men feel ashamed. They cannot show the real emotion. PR, VR, like how much you guys have to pay? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। टेल मी, अभी जैसे ये ब्लर हो गई लाइंस, women leaving their feminine side and वो थोड़ा ज़्यादा masculine बन रही है, do you think it's a good thing? देखो, of course men and women both have the right to live their dreams and chase their dreams and grow, but I feel what is important is कि हमें awareness होनी चाहिए। ये चीज़ की awareness जो मुझे life में हुई through meeting somebody, I feel अगर हम लोगों को एक school में curriculum हो, which I really believe कि अगर ये सब पढ़ाया जाए of how you maintain your feminine energy should be a part of school curriculum, and then of course health, wellness. Feminine side होती क्या है? वो थोड़ा समझाओ. I'm a man, I don't understand. So I'll tell you what is the feminine side. I feel like every girl, see, women are made in a way that they love to come back to somebody who can sort of take care of them, right? And in the society or in today's day and age, कैसा हो गया है कि आप खुद ही अपना ध्यान रख रहे हो, खुद ही अपना पैसा, you are not depending. And I'm not saying being dependent, but I'm just saying that, okay, you are the provider, I am the, the what do you call? Protector, yeah. So you're the provider, I'm the protector, and keeping the family together. So there were certain roles and responsibilities for both men and women. Now, of course, when the lines have blurred, आपको नहीं पता चलता आप कब कौन सा रोल ले लेते हो। Women are running their families also. अच्छा, प्रोवाइडर नर्चरर के बीच का नर्चरर के बीच में नहीं, आप नर्चरर तो बहुत पीछे छोड़ आते हो। आप अपने घरों को भी देख रहे हो, लॉट ऑफ पीपल आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, सिबलिंग्स को देख रहे हो, एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हो। there's a lot of load and the feminine body possibly is not made to take that pressure. Like the masculine body is not made to take the pressure of a childbirth. Right? So I feel that there were different responsibilities, and what happens is that's what disturbs your energy and your chakras and your aura. Having said that, we are all in new age and we all need to do what we need to do, but like I said, we just need to be a little more aware कि हम लोग अगर ये कर रहे हैं तो how I need to protect. Like I'll tell you about me, I would not cry. Right? And I'm not saying कि रोना अच्छी बात है। मैं मतलब बोलते हैं ना, घर की बड़ी बेटी, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, अच्छा मैं करके देती हूँ, so you become, I didn't even know that I was running on masculine energy, right? कि कुछ भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके देती हूँ, 10 फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके देती हूँ, शूट करना है 40 आवर्स करना है मैं करके देती हूँ, एक मैं फौजी जवान की तरह चल रही थी, फिक्सर। एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा, मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला कि यार आई नीड हेल्प, कैन समबडी जस्ट सिट एंड लिसन टू व्हाट आई वांट टू से। कभी कोई वॉइड फीलिंग, कभी ऐसा नहीं लगा यार मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मतलब मैं ही सबके लिए सब करती रहती हूँ? नहीं,
नहीं, बिकॉज एक्चुअली लाइफ में एट द राइट टाइम आई डिड फाइंड अ पार्टनर, और वो चेंज आता है आपको कि सडनली देयर विल बी अ पर्सन हु इज ऑपोजिट इन द सेंस ऑफ हम लोग बहुत सिमिलर हैं बट ही इज वे calmer than I am. Okay. Right? And suddenly there's a switch where I start feeling कि अच्छा now you are the person who has to listen to me. और किसी को नहीं सुननी मेरी बात, अब तुम आए जो मेरी लाइफ में, तुमको मेरी बात सुननी है, you know? तो वो एक स्विच आता है यार, उससे पहले आपको पता नहीं होता, you know? हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं बट ऐसा होता है कि रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क, ड्रीम, इस सब के बीच में आप खो जाते हो, कोई आपको बताने वाला नहीं होता है. एंड इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट introspecting, self-reflecting, you understand these things. And then you're like, oh yeah, correct. I'm not that person. I'm not that girl who'll say, तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, so I'm going to cry. You know, I'm not that girl. But when you find the right partner, then you also become that girl on days. You've become that girl? Some days. So Jackie says कि मुबारक हो बेबी, तुम लड़की बन गई हो. Because when I met him, मैं बिल्कुल नहीं रोती थी. And this is really fun. Like I used to not cry. किसी कोई आसपास होता भी नहीं था, ऐसा कोई होता ही नहीं था रोने वाला. Now suddenly there's a girl in me that has come out where I'm like, oh, suddenly I'll cry for stupid things. Not cry means I'll just feel emotional. You know, I'll feel emotional that okay. And I never knew I had that side. तो कभी-कभी आप खुद भी नहीं जानते हो कि आप, you know, आप एक लेयर से चल रहे होते हो दुनिया में. And maybe my रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन दैट इज कि जब आई वॉज 18 जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने कॉलेज में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था. और फिर मिस इंडिया, आई वॉज 20 जब मैंने मिस इंडिया किया, तो उसके बाद फिर आई मूव टू बॉम्बे. मिस इंडिया से पहले मूवी मिल गई थी ना आपको? हाँ, वो मॉडलिंग के टाइम पे. ओके, व्हाट वाज इट? मेरी से पिक्चर्स क्लिक हुई, डैड सेड 18 पे करा लेना, वंस यू आर एन एडल्ट 18 पे करा लेना. आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. वो पोर्टफोलियो पिक्चर्स क्लिक करके फोटोग्राफर देते हैं ना इधर उधर, तो उन्होंने भेज दी होंगी 100 ईमेल आईडीज पे. तो 1 महीने के बाद मुझे एक कॉल आया फ्रॉम अ कनाडा टीम, और मुझे लैक ऑफ माई इग्नोरेंस, मतलब मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 4 इंडस्ट्रीज हैं. बिकॉज ऑब्वियसली आपको यार, you were like north of north, so you didn't know. नहीं, मैं मतलब आई वाज नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा फिल्में देखकर, हिंदी फिल्मों पे बड़ी हुई थी, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी. और 17-18 साल की उम्र में आपको क्या पता होता है कि कौन सी कहाँ क्या. तो आई सेड, तो मैंने मना कर दिया था. एंड देन दे कॉल्ड माई डैड, उन्होंने बहुत फ़नी चीज़ हुई थी. उन्होंने डैड को फ़ोन किया और बोला कि वी हैव सीन हर डेट ऑफ बर्थ एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार वन डे एंड वी वांट टू लॉन्च हर. तो तब तक तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है. तो आई वाज लाइक, ओह ये तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग लग रहे हैं, चलो लेट्स एक्सप्लोर. तो द ओनली रीज़न दैट आई डिड दैट फिल्म इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वॉज कि मुझे पैसे मिलेंगे इन लैक्स, मेरी पॉकेट मनी है 2000 रुपये महीने की, तो मैं फर्स्ट वन होंगी अपने फ्रेंड्स में गाड़ी लेने के लिए. और मैंने फिर रिट्स गाड़ी खरीदी थी उससे, ठीक है. तो मुझे लगा कि 18 इयर्स की उम्र में गाड़ी आ गई यार, ब्रो रिट्स ले ली यार, रिट्स या स्विफ्ट लूंगी मैं, मतलब आई एम द थिंग इन कॉलेज. और मैं जीजन मेरी कॉलेज में थी उस टाइम पे, दिल्ली में, JMC. तो एंड आई वाज स्टडीइंग मैथ्स, तो बहुत इशू हुआ अटेंडेंस का, ये वो. एनीवेज आई फिनिश्ड द फिल्म. और वो एक्सपीरियंस के टाइम पे, फिल्म शूट करते टाइम, आई लव्ड व्हाट वी वर डूइंग. और मुझे इतना प्यार हो गया उससे. ऐसा लाइक ओके, ये आई लव एक्टिंग एंड आई वांट टू डू दिस, लेकिन कॉलेज ख़त्म करके. सो देन आई टुक दैट, आई कंटिन्यूड मॉडलिंग, आई वेंट फॉर मिस इंडिया. और उसके बाद फिर आई केम टू बॉम्बे एंड आई सेड ये प्रॉपर्ली करते हैं. फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू किया. कनाडा फिल्म में कैसे? यू वर इन नॉर्थ, पता भी नहीं था कौन सी मूवी, लैंग्वेज कैसे बोली? रट के. अच्छा. हाँ, आई वॉज अ वेरी गुड रट्टू, वेरी गुड रट्टू तोता. यार मेरे 10th बोर्ड्स में ना 100 आए थे सोशल साइंस में, रट के. इंटेलिजेंस नहीं है ये, मैं रटना बहुत अच्छे से आता है. सारी स्क्रिप्ट रट ली बाय हार्ट. मेरा मतलब मुझे बोलते थे, सो आई यूज्ड टू कीप लिसनिंग टू इट, रीडिंग इट. एंड ऑफ कोर्स आपके पास एक ट्रांसलेटर होता है जो आपको बताता है कि इसका मतलब क्या है. फिर मैंने कनाडा में वही एक फिल्म की, वो 1 साल बाद रिलीज हुई. तब तक फिर मुझे और कॉल्स आने लग गए थे तेलुगु से. बट आई वांटेड टू फिनिश माय कॉलेज and then get into films. Is there a reason कि people give more opportunities there, new faces का कुछ demand रहती है? I feel definitely एक तो फिल्में बहुत बनती हैं, 4 इंडस्ट्रीज हैं, तो उतना ही
मतलब आप सोचो ना, हम लोग Opportunities साउथ उतनी बोल ज़्यादा देते हैं, बट एक्चुअली तो वो 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं और उतनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उतने ही एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं. एंड ऐसा ही नहीं है कि खाली नॉर्थ से, तेलुगु में भी तमिल से काफ़ी लोग आते हैं, मलयालम से काफ़ी लोग आते हैं. सो आई थिंक ऑन द होल फिल्में इतनी ज़्यादा बनती है ना, तो दैट दे ऑलवेज नीड मोर टैलेंट एंड द एक्सेस इज ईजियर. Okay, what do you mean by access? आई मीन बाय एक्सेस कि वहाँ पर ना एक ही ऑफिस होगा, वो आपके फोटो कहीं देख लेंगे, वो आपको खुद बुलाएंगे. एटलीस्ट मेरे टाइम में ऐसा ही था. आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक व्हेन जब मैंने काम करना शुरू किया था उधर. तो वो आपको टिकट बुक करेंगे, बुलाएंगे. मेरे डैड आते थे मेरे साथ, मैं ऑडिशन देती थी, फोटोग्राफ ये वो वीडियो पे देखते थे, एंड यू आर साइंड. ये जो बीच का स्टेप की कास्टिंग डायरेक्टर है, फिर दूसरा है, फिर पहले कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट मिलेगा आपको, फिर वो 10 लोग सिलेक्ट कर, यू नो दैट होल हायरार्की का सिस्टम जो है बीच में घुसने का. सो वहाँ पे डायरेक्टर वुड कॉल. आई रिमेंबर पुरी जगन्नाथ सर कॉलिंग मी वंस आफ्टर माई दैट फर्स्ट फिल्म रिलीज्ड. उस टाइम इनकी पोखरी आई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था वो फोटोज कहीं देख के, एंड आई वेंट विद माई डैड. और मैं ना मना करके आ गई थी क्योंकि उनको 70 days चाहिए थे, और मैं बहुत स्टूपिड थी. मतलब मुझे पता ही नहीं था कि फिल्में कैसे. ऑफ कोर्स आई डोंट कम फ्रॉम फिल्म्स, राइट. तो मैंने उनको बोला कि बस 4 दिन का कुछ होगा तो मुझे देना, 40 days नहीं मैं दे सकती, मैं मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ मैं. सो मतलब आई डिडंट नो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. आई वाज सो नाइव एंड बुद्धू. आई डिडंट नो कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपको 4 दिन का काम करना है. मतलब यू आर एक्चुअली पुटिंग योरसेल्फ इन अ ट्रबल फॉर फ्यूचर. तो उन्होंने मेरे डैड को बोला था कि ये डिग्री गले में टांग के घूमेगी क्या. सो ही इज लाइक आई कांट टेल हर नॉट टू कंप्लीट हर स्टडीज. So my main thing was so I said no to many films like that, but there used to be direct calls. Now that we were talking, मेरे दिमाग में आया ऐसा कभी. इधर डायरेक्ट कॉल्स नहीं होते इधर. I think it's the casting director first, and the casting director decides. I don't know what's happening right now, but I'm talking about 10 years back. 7, 8, 10 years back. Generally every film has a casting director. फिर वो आपको फ़ोन करेंगे या वो कुछ शॉर्टलिस्ट को फ़ोन करेंगे. एंड ये इजी हो जाता है अगर आप साउथ से आते हो, साउथ में 3-4 मूवीज करी होती है, देन यू कम हियर, इज इट इजियर? Oh yeah. I'll tell you nothing. उतनी वापस आराम नगर जाके आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी करना पड़ता है. उतना नहीं होता है, बट I'll say what is easy or tough. ऑडिशन तो आपको फिर भी ऑडिशन. कैन आई टेल यू समथिंग, देयर कुड बी अ रोल दैट आई माइट स्टिल ऑडिशन फॉर टुडे. वो भी होता है. एंड वो हम सिर्फ यहाँ पर सोचते हैं कि ऑडिशन करना, ओ माय गॉड यू नो मैंने इतना एस्टैब्लिश कर लिया. वेस्ट में बड़े बड़े एक्टर्स आज भी बड़े बड़े एक्टर्स ऑडिशन करते हैं फॉर द मेकर्स टू बिलीव कि ये वो पार्ट लगते हैं कि नहीं. मैंने खुद डॉक्टर जी के लिए ऑडिशन किया था बिकॉज द डायरेक्टर, एंड आई ऑफर्ड इट बिकॉज आई एम ऑफ द बिलीवर. वाई नॉट. अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न लगती हूँ, बिकॉज एक ना इशू है कि आपकी एक फिल्म अगर ग्लैमरस होती है तो सबको लगता है नहीं शी इज वेरी ग्लैमरस, बिकॉज वी आर अ हर्ड मेंटालिटी काइंड ऑफ अ सोसाइटी. Shit. We are, but we are, you know, मतलब बोलते हैं ना कि भेड़चाल, वो भेड़चाल हम सब में है. कैसे ब्रेक करते हो टाइपकास्ट तुम? जैसे अब मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल रकुल इज अ ग्लैम करेक्ट गर्ल टाइप रोल, देन यू पिक अप अ फिल्म लाइक अ छतरी वाली, या फिर आपको कोई ऐसा मेकर मिल जाता है. जैसे डॉक्टर जी या छतरी वाली दोनों ऐसी फिल्म्स थी जिसमें मैं ग्लैमरस प्ले नहीं कर रही थी. फिर जब आप 2-3 वैसे कर लेते हो, फिर लोगों को लगता है अच्छा ये हो गए हो टाइप कास्ट. बिकॉज आई टेल यू, जब मैं साउथ की जो मेरी फिल्में थी वो गर्ल नेक्स्ट डोर फिल्में थी. एंड यू नो कभी आप हाफ साड़ी पहन रहे हो, आप यू आर दैट क्यूट गर्ल नेक्स्ट डोर. तो जब मैं दे दे प्यार दे में इधर आई थी, एक्चुअली थैंक्स टू द टीम, दे सॉ दैट इमेज एंड दे लाइक नहीं यू नो इसको हम वैसे प्रेजेंट करेंगे. तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक लुक हुआ, रीडिंग्स हुए. बट इट ऑलवेज टेक्स, एंड आई फील वही मेकर्स एज मेकर्स जो हमारे पास कुछ मेकर्स होते हैं जो आपको उस नज़रिए से देख पाते हैं कि, एंड आई फील वही तो एक जॉब है ना एक्टर की. अगर मैं खुद को ही प्ले कर रही हूँ, आई कुड बी ग्लैमरस इन रियल लाइफ, बट अगर मैं यही प्ले कर रही हूँ, देन व्हाट्स द फन ऑफ इट? ट्रू. I want to be able to. But then ऐसे अगर आप सोशल मीडिया पे let's say you're the glam person, right? Your fitness, travel, very glamorous, very style, हर चीज़ करते हो. तो आप सोशल मीडिया पे as a viewer, I know you like that. Yeah, मैं झल्लापन भी बहुत डालती हूँ सोशल मीडिया पे. Okay. मतलब अगर आप That's a real personality. That's my real personality. मतलब अगर आप मुझे real life में देखो, I am not someone who likes to do makeup. Really? No way. Yeah, I swear to God. अभी आप अपना फ़ोन खोलो, चलो बेट लगाओ, और मेरे कुछ लास्ट जैसे ना होता है सैलून जाते हुए पैप हो गए,
या जिम से आते हुए पैप हो गए, सी विच जिम वीडियो डू आई हैव मेकअप इन, या आई हैव लाइक ब्लो ड्राइड हेयर कमिंग आउट ऑफ द जिम, नहीं है, तो जूंडी बनी होगी एक छोटी सी, यू नो आई बी स्वेटिंग, बट आई एम नॉट दैट गर्ल. बट कितना इंपॉर्टेंट होता है इन योर फील्ड क्या पूरा टाइम सजे रहना? यार आई फील दैट यू नो देयर इज नो एंड टू आप कितना प्रेशर अपने ऊपर लेते हो. एंड आई एम समबडी हु इज़ वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन. मुझे नहीं लगता कि हर बार एक परफेक्ट इमेज ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड, द परसीव्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखाने की ज़रूरत है. वी आर ऑल नॉर्मल, वी ऑल हैव गुड एंड बैड डेज. मैं कई बार, हज़ारों बार पैप हुई हूँ सर में तेल लगे हुए, या सेम चप्पल पहने हुए, या वही घर के शॉर्ट्स पहने हुए, या वही जीन्स. मेरी मॉम कॉल करके मुझे बोलती है तुम ये जीन्स फेंक दो, मैं 5 दिन से 5 बार से देख रही हूँ, बिकॉज आई यू नो इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ एंड यू नो यू एंड अप वेयरिंग. तो आई फील इट्स नॉर्मल. जो मैं एक एक्टर हूँ, बट दैट्स माई प्रोफेशन. एंड येस, एम आई प्रेजेंटिंग माई सेल्फ वेल उस टाइम पे? आई एम. लेकिन जब मैं घर पे हूँ, या जब मैं घर से सिर्फ अपने एरेंड्स रन करने बाहर जा रही हूँ, या मैं सैलून जा रही हूँ, या मैं कहीं बैंक पे दिख गई, आई एम नॉट गोना टेक प्रेशर. एंड यू नो बिकॉज ऑल्सो आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हो फॉर द यंग पीपल हु सी दिस. You know the youngsters, teenagers जो actors को क्या वही तो सेल होता है. But sell करना जरूरी है. Aspirational figure. It's not about मुझे उसके जैसा बनना है. नहीं, उसके जैसा बनना, that's what I'm saying. जब आप स्क्रीन पे देखें, या जब मैं इवेंट पे जा रही हूँ, जब मैं काम के, that's my belief कि या मैं काम करते हुए दिखूँ, या मैं इधर पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, I'm well dressed and I should be well dressed, I should be looking good, all of that. लेकिन वही 12-13 साल के लोग, बच्चे, जो हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, हमें नहीं पता था कि हमको मेकअप करना है या हमको हेयर कलर करना है, या टुडे एवरीवन थिंक्स दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, एंड दैट्स रॉन्ग. व्हाट स्टैंडर्ड्स आर वी सेटिंग फॉर आवर यंगर जनरेशंस? आई फील हम उनको बहुत कंफ्यूज बना रहे हैं. उनको लगेगा कि बिकॉज अब उनकी रियलिटी सोशल मीडिया हो गई है. हम लोग सोशल मीडिया के एज में बड़े नहीं हुए. 90s के जो बच्चे हैं वो हम लोग, phone was a transition, landline से mobile phones पे आए. So for us, our validation is not mobile phone. Yeah. But for the newer generation, younger generation, the Gen Zs or whatever alpha betas now that are going to come, उनके लिए the validation and reality is social media. The fastest growing industry in US is teenager makeup. See? And UK में is the fillers for teenage people. Can you imagine? और my mom used to say कि जब तक तुम 16-18 साल के नहीं होते, lipstick was not allowed. I had never used lipstick till I was, I think, 16, Do you think अच्छी चीज़ है, गंदी चीज़ है? Young people, more and more people वो fillers डलवा रहे हैं, botox कर रहे हैं, and makeup लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा. 12-13 साल के बच्चे. 12-13 साल के लिए गलत है. आई एम नॉट अगेंस्ट फिलर्स और बोटॉक्स. इट्स लाइक अगर किसी को अपने आप को यू नो मेंटेन रखना है या ब्यूटिफाई करना है, प्लीज बाय ऑल मीन्स डू इट. बट आई फील देयर इज अ राइट एज फॉर एवरीथिंग. What's the right age? No, right age, that I mean that depends on how good your lifestyle is. But what do you feel? Like what's the still कि इसके पहले तो प्लीज मत ही करो. यार पहले बड़े तो हो जाओ. पहले become an adult. No? You know, like subjective नहीं. I'm saying in law also 18 is adult. Yeah. Right? And they say 21 for marriage because they feel कि आप तब तक mentally mature नहीं होते. और अभी एक study भी आई थी कि women get emotional maturity at 33 and men get at 32 and men get at 40 something. Yeah. So I feel like 25 is the age जहाँ पर आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं in all probability according to me. 30 is when आपको life समझ आनी शुरू होती है. You know, 20s में भी आप में काफ़ी बचपना होता है, but 30 is when you're like, okay, what really matters in life? You know, जो हम बातें कर रहे हैं of self introspection and reflection, कोई 12-13 साल के बच्चे को बोलेगा just shut up, you know. तो I feel कि सब कुछ सही एज पे, सही नॉलेज के साथ, सही टाइम पे ठीक है, बट जब तक आप खुद को ही नहीं जानते हो और आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे इतना डिपेंड कर रहे हो, where you feel that I'm not good enough and I need to use these means, I feel that's not right. It's too much pressure. And फिर वो imagine अगर आप 12 साल 13 साल की उम्र से ऐसा कर रहे हो, you'll always be people pleaser because at the end of the day आप क्यों कर रहे हो ये? लोगों के सामने खूबसूरत दिखने के लिए ना. तो फिर I don't think it's right. पर ऐसे in your field,
isn't it important कि मैं हर टाइम ही बहुत बढ़िया दिखूं? नहीं यार, I don't think so. At least I feel I don't think so. And so there are so many people. नॉर्मल दिख सकते हो. I feel Kareena Kapoor is the biggest example. She's a star और कितने सालों से. And you've seen her step out without makeup कितनी बार. She'll post her picture with that beautiful sun-kissed skin and she looks amazing. And I think वही in our field what is also very important is to set right standards जो मैं आपको बोल रही थी. Because अगर आपको इतने मिलियन लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे तो आप एक परसेप्शन नहीं दिखा सकते एट हर पॉइंट. ये मेरा बिलीफ है. कई लोगों को लगता है कि नहीं एस्पिरेशनल रहो, बट मुझे लगता है कि आप अगर रियल वे में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो देन इन्फ्लुएंस फॉर द राइट रीजंस. दैट येस व्हेन आई एम वर्किंग आई डू दिस. येस मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ, मैं हेयर का ध्यान रखती हूँ, स्किन का रखती हूँ, फिटनेस वेलनेस ऑल ऑफ दैट. लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ मैं सर पे तेल भी लगाती हूँ और मैं लिप्स पे भी घी लगाती हूँ और मैं कान में भी घी डालती हूँ. मैं बहुत चीज़ें करती हूँ यू नो एंड इट्स नॉर्मल. So I always joke like वैसा लगने के लिए ऐसा लगना पड़ता है. अच्छा. You have to give yourself break days and like I said, आप कितना pressure लोगे? And pressure comes from what, right? It comes from मुझे लोगों को prove करना है that I'm always amazing. मुझे नहीं करना है. I know I'm amazing. True. To have that. But that security comes very. You have worked on yourself a lot. You're talking about Kareena Kapoor. She's beautiful. Yeah. Like. So I'm not just Kareena. There's so many people. Alia Bhatt. She owns her freckles. Like आज की generation अगर आप देखो. But all of you guys, like look at your skins already. You guys have maintained. तो मैं वही बोल रही हूँ कि skin का ध्यान रखो. But do I have to always be like in hair and makeup? See, because good without skin, it also you guys are like already have achieved a very unrealistic standard of beauty with not no that is not unrealistic. That's very easy. That is all घर के नुस्खे और वो हर Indian mom को पता होता है वो सब चीजें क्या होती हैं. अच्छा, tell me your skincare routine. My skincare routine is very simple. When I do face mask, जो whatever अगर टमाटर कट रहा होगा तो for detanning I use tomato juice और potato juice, you know, cotton में लगा के अगर tan हो गए. Otherwise if I feel my skin is dry तो banana mask is really good. मलाई, banana, honey, नींबू वो mix कर दिया. Hair पे avocado और banana mix करके लगा दिया. Sometimes with egg. ऑल ऑफ दैट. ये सब मैं बोल रही हूँ मैंने एक साल में एक बार करती होंगी. फेस मास्क ज़्यादा ऑफन करती हूँ. आई डोंट हैव द पेशेंस टू पुट द हेयर मास्क एज मच. आई एम ऑल्सो वेरी टॉम्बॉयिश, तो मेरे में इतनी पेशेंस है नहीं कि मैं अभी लगे रहूँ ये करने में. तो डेली क्या करते हो? व्हाट डू यू? नथिंग, जस्ट वॉश माई फेस, क्लेंजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव मेकअप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेकअप उतारो चाहे आपने थोड़ा सा. जो गलती लोग करते हैं दैट इज मस्कारा लगा के दे डोंट हैव अ सेपरेट रिमूवर फॉर मस्कारा. ऐसे मुंह धो लिया, you know, which is very wrong because that is what आपकी जो आई के अराउंड स्किन होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, सबसे थिनेस्ट होती है वो. So I feel removing a makeup is very important. First thing in the morning, wash your face with cold water. Very important. And cleansing, toning, moisturizing. मेरा रोज़ का बस इतना ही है simple. और शूट से पहले if I feel कि मुझे puffy है तो ice water में I put my face, which is very good for your pores. And I feel more than what you do on your skin now, how you feel from within. And how secure as a person you are and how happy as a person you are. आप क्या सोचते हो, आप क्या खाते हो, आप किन लोगों से मिलते हो और आप अपने लाइफ में आसपास कितना एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रखने की कोशिश करते हो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है. That is the key because I feel so many people are like अरे उसने ये बोल दिया, तो वो उसकी प्रॉब्लम है. उसने ये मतलब why are we just burdening ourselves with so much that the society has to offer and getting affected? That's what shows on your skin. So is having right people around you very important. I feel the most important thing is कि आप of course you're born in a family but you choose your friends and to surround yourself with the right people because I'm a big believer of energies. Yeah. I feel कि you know कई लोग आपको एकदम एक एनर्जी बूस्ट दे सकते हैं और कई लोग आपसे एकदम ऐसा लगता है ना किसी को मिलके कि यार बहुत ऐसे नेगेटिविटी आई डोंट वांट टू sucked my energy out. That's for true, that's for real. So just be with people who are happy for your growth or who make you laugh. And I'm a believer roti kapda makan, chill, happy, laugh. That's all you actually need in life. ओके, मेरे को डिस्क्राइब करो एनर्जी ड्रेनर्स जो एनर्जी सक करते हो क्या होते हैं. ओह गॉड, एक्सप्लेन अ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स ऑफ देम.
You know, I don't like nosy people. ऐसे आप किसी को मिल लिए कहीं पे और फिर वो आपसे बहुत सवाल पूछते हैं और आपको लगता है मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, आप मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? उस टाइप के लोग मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो कैसे अवॉइड करते हो इनको? एक्सक्यूज मी बोल, मैं तो निकल जाती हूँ। आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। Really? या आई हैव जीरो टॉलरेंस। मैं छोटी भी थी ना, एक्चुअली माई पेरेंट्स ऑल्सो, एंड आई हैव टू गिव देम द क्रेडिट कि उन्होंने कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस आसपास एंटरटेन नहीं किए। आई रिमेंबर जब मैं मॉडलिंग करना शुरू किया था, एक मैगजीन पे मेरा कवर आया था 6 महीने into 8, तो किसी रिलेटिव ने दूर से, इसलिए होते दूर के जिनको आप जानते नहीं हो, उन्हें बोला कि अच्छा ये कैसे फील्ड में डाल दिया है आपने, एंड चलो इतने कपड़े पहने की तो ठीक है, इतने नहीं होने चाहिए। सो माई डैड जस्ट लुक्ड एट हर एंड सेड, सॉरी आपके बच्चों का नाम क्या था? तो शी सेड ये एंड ये। लाइक देखो मुझे आपके बच्चों का नाम भी नहीं पता, तो आप मेरे बच्चों का करियर कैसे डिसाइड कर सकते हो? Wow. So he just said it on the face, and he said, if anybody has a problem, come talk to me. So my parents, I'm blessed. एक तो I feel like army में जो families होते हैं, they're also a little more, not little more, but I think they are progressive. There are a lot of other people also progressive, but largely you will see a lot of army men because they've seen life. उन्होंने देखा है कि भाई life क्या है, you know, you're at the border, you don't know what is. So ये छोटी छोटी चीजें ना उनको फर्क नहीं पड़ता। Tell me, आर्मी पेरेंट्स है आपके, तो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसे डिफरेंट होती है? क्या? Oh wow, बहुत डिफरेंट होता है। I feel क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? लाइक यू तो फनी चीज बताती हूँ कि जब हम छोटे थे ना, अभी मुझे गाली मत देना लोग इसके लिए, बट जब हम छोटे थे तो एक आप किसी भी आर्मी वाले बच्चों से मिल लोगे ना, दे विल फील कि सिविलियंस को कुछ नहीं आता। एक ये टर्म होता है इन द कैंटोनमेंट्स, हैव यू इंटरैक्टेड विद? I know so it's like army and civilian. तो जब मैं छोटी थी वी यूज्ड टू थिंक सब सिविलियंस है, जो डिसिप्लिन है और जो प्रॉपर मैनरिज्म है वो खाली आर्मी वालों बच्चों में होता है। तो वो आपको एक ऐसा बिलीफ होता है बिकॉज एवरीवन एल्स इज वेरी लेड बैक, बट आई फील लाइक द मोस्ट स्टार्क डिफरेंसेस, एक तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है कैसे बचपन से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे स्विमिंग नहीं करना, डर लगता है, डर नहीं लग सकता है, यू नो, यू हैव टू गो एंड ट्राई, यू कैन नॉट से नो। जैसे हमें अलाउड नहीं था कि आपको ये नहीं खाना है, क्यों? अच्छा नहीं होगा, होगा नहीं, ट्राई करो फिर ओपिनियन बनाओ। ये स्विमिंग जाना है, अंधेरे में डर लग रहा है, माई डैड वुड से अंधेरे में डर लग रहा है, चलो ठीक है अभी रात को 12 बज के जाओ, गेट तक जाओ, गेट को ताला लगा के आओ बाहर। He did that with my brother. He did that. He was very young. वो 5th 6th standard में he said नहीं मुझे नहीं जाना अंधेरे में। He said okay. पूरा अंधेरा हो गया, 11 साढ़े 11 रात को बज गए। He said okay now you'll go down alone, you'll lock and come back. Let me see what happens to take out the fear. तो I feel वो ना आपको बहुत fearless upbringing होती है एक, that you know that you can take on the world. And I feel that's very important because हम जितना बच्चों को protect करते हैं ना, उतना हम उनको society के लिए unfit बना रहे हैं। Yeah. I'm so grateful to my parents for making us like giving us the tools and upbringing in a way कि हम लोग fearless बने। Were you fearless? बचपन से आप fearless थे? Yeah, I think so. Were kids like men hitting on you when you were growing up? No, yeah, I was hitting them. क्योंकि ऐसे आपके डैड आर्मी में थे तो लोगों की फटती होगी। सभी आर्मी स्कूल में थे, बात वो नहीं थी, लोगों की मुझसे फटती थी शायद, because I was very tomboyish. Oh. I was very tomboyish. So the boys won't hit on you? No, I was that girl and जो उनकी best friend मतलब जो bro vibe वाली लड़कियाँ नहीं होती कि ठीक है, and more of my friends are guy friends, you know, मुझे वो बिकॉज लाइक आई सेड कि वो मैं आउटडोर्सी टाइप एकदम ऐसे ब्रो वाइब टाइप, तो अच्छा तुझे वो पठानी है ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो आई वाज द विंग वुमन और आई वाज द ब्रो, तो पीपल यूज्ड टू नॉट हिट ऑन मी। व्हेन यू स्टार्ट मॉडलिंग देन तो गाइस विल बी हिटिंग ऑन यू लेफ्ट राइट सेंटर। Yeah, but of course, I'm sure. But I was also, I don't think I'm a very easy to approach person.
ओह, तो ऐसे Yeah. मतलब ऐसे आई डोंट नो, लगता है ये लोग ऐसा डरते हैं आपके मुझे, अप्रोच में? हाँ, so my People are scared to come to you? yeah, so this I have heard from so many of my friends and I used to be like, no यार. So मेरा भाई बोलता था, my younger brother is like, डरा के तो रखते हो सबको, कैसे कोई आएगा आपके पास? So this is a very funny thing. When Jackie and I started we were meeting and not dating. So I was like, this guy is not even making a move. Like, he's not asking me. It's been 3 months, 4 महीने हो गए. So there was one incident जहाँ पर I was leaving for an outdoor. तो मुझे ना गाड़ी तक ऐसे छोड़ने आया, तो मुझे लगा अच्छा हमारा बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप रोमांस है कि हाथ भी नहीं पकड़ा है अभी तक टाइप. तो ही जस्ट हेल्ड माई हैंड. बोला अब तो कुछ बोलेगा, अब तो कुछ बोलेगा, यू नो, अब मैं जा रही हूँ शायद 20-25 दिन के लिए, तो ही से समथिंग. तो ही जस्ट हेल्ड माई हैंड एंड ही इज लाइक, I'm scared. I said, what? My brother was right. But how cute. So he said, I'm scared because I don't know how you'll react. So I think I come across as a person who's I am a very no-nonsense person also. कि तो शायद वो लोगों को दिख जाता है. But I used to not. बात करी तो मार देगी, थप्पड़ पर मार देगी. मारा भी है मैंने स्कूल वगैरह में. क्या बात कर रहे हो? कैसे, क्या बताओ, ये किसको मारा? बहुत कोई इतनी प्राउड होने वाली बात नहीं है, बट ऐसे मतलब आई वाज अ गुंडी, फुल गुंडी कि मतलब तुमने क्यों मारा, बोल क्यों दिया तुमने, मतलब यू फटाक क्यों बताओ क्या तुम, यही मतलब यू नो समबडी हिटिंग ऑन यू एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, ओ किसी ने बोला कि आप मुझे पसंद हो तो दे दिया था कि थर्ड. रे क्या, आई एम टेलिंग यू. सो आई वाज अ फुल, आपकी वजह से तो पता नहीं कितने लड़के ट्रॉमेटाइज्ड थे. पूरी क्लास को ट्रॉमेटाइज, पूरी क्लास किसी और को नहीं लाइन मार पाई. ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल प्राउड होने वाली बात नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं बहुत टॉम बॉयज थी. हैव यू एवर हैड अ हार्ट ब्रेक? वी ऑल हैव ना. हैव यू? आई हैवंट हैड. You've not had a heartbreak? Yeah, I guess. I think we all go through lessons in life. What did you learn from it? चलो ये तो बता दो. हाँ, ये मैं बताती हूँ. My journey into spirituality began because of heartbreak. Because of a heartbreak. Attachment na is a very scary thing. Dependability, attachment. Love is great. लेकिन you cannot be you cannot feel that somebody else is filling a void in your life. You have to be so complete within yourself. आप एक इंसान हो जो अपने आप में पूरी तरह से complete हो, और फिर आप दूसरे एक complete इंसान को मिलते हो, and then together you make a new world of your own. And when I met Jackie, we actually had this conversation हमारे first date पे, जो dinner date पे, and I said कि I'm happy and you are happy. I'm happy as a person, you are happy as a person. And either one of us are not responsible कि मुझे ना तुमको ये करना है तो तुम खुश होगे. वैसा नहीं होता है. Together we are just happier. Because we can do many things together. But that doesn't mean कि तुम आज मुझे पिक्चर पे नहीं लेकर गए तो मैं बहुत दुखी हूँ. मैं खुद भी जा सकती हूँ. Life is more than that, you know. और आपको कोई ये सिखाता नहीं है. हम लोगों के जो आइडिया ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, दैट इज़ फ्रॉम व्हाट वी सी इन द सोसाइटी, व्हाट वी हैव सीन एट होम. इनसिक्योरिटीज़ जो आप फिल्मों में देखते हो या शोज़ में देखते हो या अपने आसपास देखी होती हैं. बट व्हाट यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस इज़ कि एक्चुअली आपको खुद में इतना सिक्योर और कंप्लीट होना होता है दैट आप then you know you don't have that jealousy or insecurity in a relationship. Like both of us don't have it. How did he propose you? जबरदस्ती करवाया था मैंने. क्या बात कर रहे हो? जबरदस्ती. I said I'm not walking down the aisle. शादी डिस्कस हो गई, शादी कब हो रही है डिस्कस हो गई, सब कुछ प्लानिंग चल रही है. एंड I said मतलब तुमने ब्रो अभी तक ब्रो नहीं, मतलब तुमने अभी तक ब्रो yes Jackie. But I have said that to him also. He's like भाई तुम मतलब I said that to him also many a times. that happens. So I said if you don't propose I'm not walking down the aisle. तो बहुत प्रेशर था उसको. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से भी बुलवा दिया था कि ये बोलना ही बोलना है, करना ही करना है. सो हम लोग अपने बैचलर्स पे गए थे. हमने कंबाइंड बैचलर्स की थी बिकॉज हमको साथ में पार्टी करना था. सो वी ऑल वेंट टुगेदर 20-25 पीपल, उसके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, हम सब. एंड दैट्स वेयर ही प्रपोज टू मी. एक्चुअली भूमि इज हिज बेस्ट फ्रेंड. ओके. एंड भूमि वॉज द पर्सन जिसने
पूरा वो किया, क्या बोलते हैं, प्लान किया. प्लान्स में सब फ्रेंड्स थे, बट भूमि ने इनिशिएट किया, क्योंकि आई वुड नॉट हैव डाउटेड भूमि. मेरे किसी भी दोस्त को अगर वो यूज करता तो मुझे 2 सेकंड में पता चल जाता कि ये गायब क्यों है यहाँ से. तो उसने भूमि को यूज किया, और भूमि ने मुझे बोला, रकुल यार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, गाइज लेट्स ऑल गो फॉर ब्रेकफास्ट. द बॉयज साइड वांट्स टू होस्ट द गर्ल्स साइड, यू नो, इन मॉर्निंग. भूमि 10 बजे, मतलब सामूही में सुबह 10 बजे उठ के ब्रेकफास्ट के लिए कौन जाए. नहीं वो बीच पे बहुत अच्छा है. तो आई डिडंट डाउट हर. मेरे कोई फ्रेंड्स होते ना, आई वुड हैव डाउटेड. I would have been like, तुम लोग उठने वालों में से नहीं हो. So what's happening? And I had totally forgotten. And then उसने मुझे निकलने से पहले she's messaged me. She's like, अच्छा bro, just wear nice clothes. We'll take pictures. Now Bhumi loves to get ready. She's a full girly girl. अभी हम movie में भी, so I know like she loves to get ready. Then I was like, अरे यार, Bhumi's going to take pictures. तो मैं थोड़े से ढंग के कपड़े पहन ली, because I was in shorts and a loose t-shirt. So I was like, चलो ठीक है, एक dress पहन लेते हैं. Nothing, no hair, nothing, okay. And then gone there, and on that beach वहाँ पर फिर पूरा वो marry me लिखा हुआ था. And then there was he had made a song to propose, सुनो सुनो will you marry me or something like that. So that was playing, and then yeah. Then nice. I was laughing. I was in the backpack, and I was like, okay, this is happening. Yeah, it was But fun. First time I say, who started the conversation ki, hey, let's get married? But what was the point जब you got ready? You're like, hey, now अब मुझे वो पहले आ गया था कि लाइफ स्पेंड करेंगे, बट कब क्या, आई थिंक इट वाज अ लॉट टू डू विद आवर टाइमलाइंस ऑफ वर्क आल्सो, यू नो. उस टाइम पे कि मैं कब प्रोफेशनली आई फील मैं वो ब्रेक ले सकती हूँ, बिकॉज ऑल्सो आई वांटेड टू हैव 1 month of no work. And I think mentally also you want to be in a space where you're like, okay, चलो मैं transition के लिए ready हूँ, you know, या मैं वो. But I never wanted कि अच्छा मुझे कोई बहुत बड़ी break लेनी है. हम लोग 3 दिन पहले तक काम कर रहे थे शादी के, और 1 week में वापस आके काम कर रहे थे, both of us. So I feel, but जो tipping point था, that this is it वाला tipping point, वो ना एक बहुत, it was a beautiful thing actually that Jackie told me. When his sister and his brother-in-law were getting married, तो धीरज भैया told his sister कि मेरे ना कुछ ये 10-15 लोग हैं, या मेरे कुछ एक लिस्ट है of non-negotiable people that I don't want कि तुम best friends बनो, but these are people जिनके साथ you have to get along because they are non-negotiables for me. Similarly, तुम मुझे अपनी लिस्ट दे दो, and whether I like them, I don't like them, I will get along with them because. And I loved that thing, you know. I was like, जब हम लोग ऐसे मिलते थे तब he had told me this, and I was like, wow, yeah, that's so sweet to say something like that, and to validate कि you know we both can have different set of people in our lives जो हमारे लिए बहुत important हैं, और हमको वो change करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग second lockdown में, and this is before or right after or before this whole dad incident happened, हम लोग गोवा चले गए थे with my brother, friends. We were 7-8 people. वहाँ पर one night we were just dancing and all, and he just asked me, I'm ready to know your list. Oh. So then I was like, okay, this guy is serious. So and things I think escalated. So then things accelerated, and when he said that, I felt and we both follow it. मतलब ऐसा नहीं हुआ है, which is why I say मुझे लगता नहीं है that I'm married because nothing touchwood has changed. Okay, let me ask you a question. अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद है, and if Jackie talks to him or her, are you okay with it? Yeah. Absolutely. मैं बात नहीं करूँगी, तुझे करना है तो कर ले. हाँ. Because he's old enough to make decisions for himself. I feel that हम लोग ना खुद की लाइफ मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ इस मामले में, मतलब you know I think like that. I feel कि हम लोग अपनी लाइफ को ना बहुत easily complicate कर देते हैं. तुमने उससे बात क्यों की, तुम यहाँ क्या करो. For me and him both, कि अगर हम कहीं बाहर गए भी हैं और उसको मज़ा आ रहा है और मुझे अर्ली शूट है, you can stay, I can come back. हम लोग 2 इंडिविजुअल्स हैं जो साथ में हैं. दैट डजंट मीन दैट either one of us has to ever feel कि यार हम ट्रैप्ड हैं. यू नो तुम्हारे और हमारे स्केड्यूल्स कभी नहीं मिलेंगे. लाइक आई हैव बीन शूटिंग, आई हैव नॉट सीन हिम प्रॉपर्ली इन द लास्ट 10 days बिकॉज टाइमिंग्स, आई लीव अर्ली, आई कम लेट, आई क्रैश. बट द थिंग इज, एक दूसरे के ऊपर बाय चॉइस वी शुड वांट टू स्पेंड टाइम, नॉट बाय फोर्स. एंड ऑल्सो रोक के मैं क्या कर लूँगी ना, वो फिर छुप के बात करेगा. What's the point? Yeah, but will it bother you? No.
ऐसे कभी नहीं लगे कि यार मेरी इस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं, मैं बात नहीं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उससे all of थोड़ी that? होती है, बल्कि रिस्पेक्ट फॉर मी इज तुमने मुझे बता दिया, तुमने बात करनी है, यू कैन गिव मी अ रीजन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक टू दैट पर्सन. यू नो, आई फील Yeah. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन. तो मुझे बता सकता है कि यू नो व्हाट, मुझे उसके साथ काम है, या आई फील मुझे उसके, आई लाइक दैट पर्सन बिकॉज सो एंड सो. ओके, ग्रेट, यू कैन लाइक Go दैट ahead. पर्सन, आई विल बी कॉर्डियल. But tell me what impresses you in a guy? आई थिंक इंटेलेक्ट. Okay, explain more. क्या जैसे I think for me, if someone is, I think every girl looks up to, sees traces of her father in the guy she really gets attracted to. मुझे लगता है ऐसा, you know, वो होता ही है. And for a guy, it's his mother that a girl he wants to marry. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मेरे लिए जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं अपने डैड से कुछ भी पूछ लेती थी, उनको सब चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता था. यू नो, ही वुड रीड, ही वुड नो, ही इज अवेयर, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, वो सब है. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील वेरी अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस. मुझे ना मॉकरी करने वाले लोग, ऐसे लफंटरबाजी करने वाले लोग कितने भी हॉट लग रहे हो या कितना भी 6 पैक 8 पैक हो, टिल द टाइम आई रियली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी, आई हैव नॉट बिन दैट गर्ल कि मैंने किसी को देखा और बोला वाह यार ये कितना हॉट लगता है. जब तक मेरी किसी से बात ना हो और जब तक मुझे आई थिंक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होती थी, आई वुड रियली नॉट हैव एन ओपिनियन. so intellect is फॉर मी, या. for you. So what else? Like what should Not just if a intellect, woman- intellect is what attracts you, and then of course it's a very guy. important कि मतलब आप में बाकी qualities हों, you know, आप में emotional intelligence like I said होनी बहुत ज़रूरी है, आप में grounded होना बहुत ज़रूरी है. See, because I come from a middle class family, right? तो मुझे ऐसे ज़्यादा hi-fi type का behavior बिल्कुल पसंद नहीं है. You know, I do a lot of my things on my own even today, like Why? Because your husband's not like little hi-fi? you know, people think he is. Even I used to think he is. But he's born and brought up here in a rich family. हाँ, but you know, actually not, because my father-in-law is not somebody who got it all easy. He used to sell saris on footpath. You know, तो वो extreme गरीबी से, मतलब ही वॉज अ साड़ी वेंडर फुटपाथ पे, जिनको शायद हम लोग नोटिस भी नहीं करते जब हम लोग लिंकन रोड वाले बैक रोड पे जाते हैं और इतने लोग होते हैं. तो हिज राइज हैज़ बिन फ्रॉम देयर. तो जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, या जो इवन व्हेन ही वाज बोर्न, इट्स नॉट लाइक वो रिचेस थे, वो when the kids were growing up वाला situation okay, था. so kids saw धीरे-धीरे पैसा आते हुए दिखा, you know, वो टाइमिंग ऐसा था. बट डैड इज अ वेरी, ही इज अ वेरी, वो नहीं होता जो लोग थिंक अहेड ऑफ टाइम काइंड ऑफ पीपल, तो वो उस तरह के इंसान है. एंड आई फील उनकी जर्नी इज लाइक अ स्टोरी इन इटसेल्फ. तो आपने ऑब्वियसली घर पे सब देखा है, और आप अपने पेरेंट्स का कोर तो नहीं बदल सकते ना. तो दैट कोर रिमेन्स द सेम, सो द वैल्यूज रिमेन द सेम. तो मुझे भी एक्चुअली ऐसा लगता था बिफोर आई न्यू जैकी, व्हेन आई न्यू ऑफ हिम, कि यार एटीट्यूड है इसमें बहुत. मैंने बोला इसको एटीट्यूड है इसमें बहुत, बट ही इज सो मिसअंडरस्टूड, क्योंकि एक्चुअली व्हेन यू मीट हिम ही इज वेरी देसी. What's the most misunderstood thing about him? वो बेचारा ना, I feel, and he says this, he's like, you know, उसके साथ क्या अजीब चीज़ हुई when he was acting. The industry used to feel कि वो outsider है, because dad was an outsider. He wasn't a part of that group, right? And the outsiders used to feel कि ये insider है. It's like, तो मैं ना actually किसी में fit in नहीं हुआ. And I feel he's a very sensitive guy. And a lot of people don't know that. You know, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था. So Gottman's ने रिसर्च करी. They've written book. They are one of, like this Gottman couple is, they're the world's best couple therapist. So they study about couples, married couples and ये सब. तो उसमें बताया था कि आफ्टर मैरिज 20% जो लोग हैं उनको उस मोमेंट से पहले कभी इतना सेटिस्फाइड नहीं लगा. सो दे आर मोर सेटिस्फाइड एंड मोर कंटेंट इन देयर लाइफ. अरे इट्स वेरी नाइस. इवन आई डिडंट नो. 80% people are not. 80% people are more dissatisfied. Oh really? Only 20% people are more satisfied. 80% people are dissatisfied. Oh really? After marriage. But maybe they don't have the right conversations. No, so the reason they were doing is multiple reasons obviously सबके. तो उन्होंने अपना जो कंक्लूजन बनाया कि बिकॉज मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा है कि पहले लोगों के पास पूरी एक विलेज होती थी टू गो टू.
नाउ देर इज मोर एंड मोर एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही इंसान से। तो आप चाहते हो कि हर चीज़ एक ही इंसान दे, आपका ही पार्टनर दे। आप उसमें बेस्ट फ्रेंड भी देखते हो, सपोर्टर भी देखते हो, लाइफ कोच भी देखते हो, थेरेपिस्ट भी देखते हो, फाइनेंशियर भी देखते हो, 50,000 चीज़ें आप एक ही में देखते हो। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन दैट पर्सन, बिकॉज आपने मूवीज में देख ली और एक्सपेक्टेशन बना ली, वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता, तो आपको डिससैटिस्फाइड। बट एक्सपेक्टेशन जो है ना, आई फील वो ना बहुत ही एक रिस्की वर्ड है। हम लोग एज ह्यूमंस बहुत एक्सपेक्टेशन अटैच करते हैं। इट इज़ नॉट राइट फॉर एनी वन ऑफ अस टू बर्डन अनदर पर्सन फॉर व्हाट आई वांट। व्हाट वी वांट टुगेदर वी कैन क्रिएट टुगेदर। लेकिन मैं बर्डन करूं कि भाई मुझे ये चाहिए, या मुझे ये, फिर भी शायद स्मॉलर टाउन्स में हो सकता है, बट फॉर बोथ मैन एंड वेमेन वर्किंग, जिनके अपने एस्पिरेशंस हैं, जिनके अपनी लाइफ है, वो बहुत डिफिकल्ट है। सी मैरिज इज नॉट it's a companionship. I feel it's a companionship, and I think I come in the 20% because मुझे लगता है बहुत मज़ा आ रहा है यार, किसी बताना नहीं पड़ता कि आप परमिशन नहीं लेनी पड़ती, because मुझे तो फिर भी बताना पड़ता था कि I'm back home, you know. So it's like if my partner is my best friend, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. I don't have to take permission, and it's not that I had to take, but my parents would worry earlier because if I was alone. Probably सारी आपकी voids एक इंसान से नहीं मांगे ना, क्योंकि जो dissatisfied वाले लोग थे, उन लोगों का प्रॉब्लम ये था कि वो उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं, वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, उनका कोवर्कर्स से ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप नहीं, वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी फैमिली भी लाइफ वही बन जाते हैं, तो वो रिसोर्सफुलनेस ढूंढ ही नहीं पाते, हर चीज एक ही इंसान से मांग रहे हैं instead of relying on like multiple people for multiple things. Absolutely, and that's why I said कि कोई आपका void fill नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि तुम तो सारा दिन काम करते हो, तो there's a work life balance, and I think everybody needs to strive. Of course it's important कि आप, we have certain rules that we follow कि ठीक है, रोज रात को we will try to unwind and have a 10-minute conversation if not more. Of course if I'm shooting night and he's shooting day and traveling, वो बात नहीं होता है, but at the end of the day we at least try and talk, how was your day, low down, so that we are invested in one another's lives. Never sleep on a fight, never ever. You made that rule, or I made that rule. He was not very good with communication. When we started dating, he would just be like, it's okay, no, and not say. I'm like, मुझे कैसे पता चलेगा? It's okay मतलब क्या है? No, it's not okay. As a man, I can second that. Yeah, but mostly women make that rule. कि women are the ones who want to talk and get it out of their system. You guys are better communicators. Yeah, better communicators, and also like we want to like, okay, this happened, so this happened, so this happened, so this happened. Like in our head, there's a structure there. But now he's very good. Friendships change होती है after शादी? Like I said, बहुत important था कि मेरे friends embrace हों और उसके friends embrace हों, जो नहीं, जो हुआ, and I feel जिस पे हमने इतनी लंबी बात की. So no, I don't think friendships changed. Nothing changed. No. For you in terms, because बहुत बार ऐसा होता है ना, शादी के बाद the biggest actual problem starts कि मतलब आपके पास अपना टाइम होता है, राइट? एंड अपना टाइम होने के बाद देन उनके फ्रेंड्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम देना चाहते हैं, आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम देना चाहते हो, एंड देन समटाइम्स मे बी योर फ्रेंड्स जस्ट वांट यू, नॉट यू एज अ कपल. No, ऐसा नहीं होता है. Friends also, so which is why I said that when, at least in our case, when we started dating, उसको मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत जल्दी मिला दिया था कि ये देखो, ये मेरी पार्टी है, पंटर पार्टी, ठीक है, ये लोग हैं, और वो रोज ही मिलता था एक्चुअली उनसे. देन जैकी वाज आल्सो एडेड ऑन दैट ग्रुप कि अभी ये हमारा ही हो गया है, ये अभी हमारा हो गया है. तो इट्स वेरी फनी कि जब हमारी शादी हो रही थी ना, तो मैंने बोला बट ये माय फ्रेंड्स आर, ही सेड व्हाट डू यू मीन माय फ्रेंड्स, दे आर आल्सो माय फ्रेंड्स. आई सेड ऑफ कोर्स दे आर योर फ्रेंड्स, मतलब सो इट्स बिकम दैट. एंड सिमिलरली फॉर हिज फ्रेंड्स. हाउ इज फीमेल फ्रेंडशिप लाइक डिफरेंट देन मेल फ्रेंडशिप? ऐसा कुछ होता है? बिकॉज ये ना मैंने कभी बात नहीं करी, मैंने, और मुझे पता भी नहीं, दिस साइड ऑफ वर्ल्ड आई डोंट नो, सो एक्सप्लेन मी. You know, I've seen on your podcast how you ask these questions. Don't say I don't know this side. नहीं, फीमेल फ्रेंडशिप्स क्या रहते हैं? मेल फ्रेंडशिप्स आई नो. Female friendships, I'll tell you. So I just had a sleepover kind of a thing with my... Oh, lovely. So explain, क्या होता है? So with my college friends. Okay. So one of them was here from the US, and and every time she comes, I go to Delhi. मैं जाती हूँ क्योंकि हम 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे कॉलेज में. तो इस बार मैं शूट कर रही थी और मैं नहीं जा पाई, मतलब लास्ट 15 साल में शायद पहली बार मैं नहीं जा पाई, whenever she is here. तो she said I am going to come, क्योंकि
you've not come. हाँ. So she got another one of the friends, और हम सब, and Jackie was actually out of station that day. We three have had like relived our whole, you know, like college में शायद हमने last sleepover किया था. क्या होता है sleepover? What do you I think talk about? What do you I do? think women talk about a lot more things that men talk about. जैसे कि what they are going through in life. Women can get really personal, you know, कि इसने ये बोला या मेरा with the husband or with the children or अब उनके दोनों के बच्चे हैं, so I could not really connect with that part कि मतलब मुझे वो problem नहीं है, kids schools and this and that, but I'm just saying that even with like partners they can share a lot more than what a man would share, and I feel women converse on more emotional basis and men converse on more सिचुएशनल कि मतलब ऐसा हो गया था यार, देखो ऐसा हो गया था, इसने मतलब उनको ना इतना डीप इमोशंस में नहीं जा. विमेन टेक एवरीथिंग वेरी लाइक डीप, दे लाइक यू नो they'll be very emotional about how they discuss also, I feel. So मतलब you guys on a typical sleepover आप लोग मिलोगे, आप लोग इमोशंस की बातें करते हो? नॉट इमोशंस की, इमोशन से बातें करते हैं. जैसे अगर किसी को कुछ बुरा लगा या किसी के ना उनके उसने मेरे साथ ये किया था तो मुझे बुरा लगा, एक बार गलती से उन्होंने बोल दिया तो ऐसा लग गया, उसने ये किया, या विमेन कैन एक्चुअली talk about a lot of things. उसने ये किया, this is what my lot of things क्या हो? Give me like 2-3 examples that the fucked up thing you guys can talk about. family issues. Like a lot of my friends would talk about not this case, but I know a lot of people would open up and talk. I don't think men talk about issues that they are facing at home with their best friends. If there is some relationship issue, a man will not, because I think pride comes in before discussing it with friends. But for women, they will discuss the smallest of the details. They will even discuss the most stupid, silly details, shopping details. Men don't care what they shop, what they bring, you know. Like, I'm saying women can really go down to details of everything, and men will always be more about fun, laughter, drink, watch something. But ऐसा होता है लड़कों में, I feel कि लड़कों को ना ज़्यादा इमोशन बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती दूसरे लड़कों को. तो लाइक समबट जो मेरा एकदम खास दोस्त है ना, अगर एकदम जो मेरा भाई है, मैं उसको देखूंगा, मेरा भाई ये हो गया, अब वो उसके बाद वो सब डिकोड अपने आप कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा. डिकोड उसको इमोशन सब पता लगे, मैं क्या थ्रू करा, कैसे, लाइक इट्स सम काइंड ऑफ सुपर पावर जो मेरे दोस्तों के पास है. इट्स क्योंकि आप सब एक दूसरे से खुल के नहीं बताते हो, क्योंकि आप सबको लगता है, बिकॉज आई फील कि मेन फील ashamed or they feel that they cannot show the real emotion, कि अगर आपको सपोज किसी चीज़ का बुरा लग रहा है in front of the world, yes, in front of the world, और फ्रेंड को भी आप ऐसे नहीं बोलोगे यार मैं बहुत रोया, मैं ये हुआ. आप बोलोगे कि मुझे बुरा लगा. सपोज कोई एक इंसिडेंट हो और आप बोलोगे कि यार रात को ऐसा ऐसा हुआ, मेरी लड़ाई हुई, मुझे बुरा लगा. शायद आप रोए हो, पर आप वो डिटेल नहीं बताओगे कि मैं रोए हूँ, बिकॉज यू विल फील कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं रोया हूँ. लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड ने भी एक सेम सिचुएशन के साथ डील किया और जहाँ उसने नहीं बताया, तो वहीं समझ जाएगा कि ये बताना नहीं चाहता है, रोया, बट ही नीड्स मी राइट नाउ, सो आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर हिम. दैट्स मेल. तो वो समझ जाते हैं, समझते इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे से सेम चीज छिपाते हैं. मुझे ऐसा लगता है. बट यू आर राइट, एंड सो डू वुमेन, लाइक दे ऑल्सो अंडरस्टैंड. बट फॉर अ वुमन शी विल एक्सप्लेन कि यू नो आई क्राइड, आई डिड दिस, मतलब वो पूरे डिटेल्स में जाते हैं. तो अब लोग जो लड़ लेते हैं, ओके, XYZ प्रेशर या दुनिया की वजह से या पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से या पर्सनल डायनामिक्स की वजह से, what should couple do to conflict, to resolve that conflict? फाइट में क्या करना चाहिए? मैं बताऊँ, I just suddenly feel like a therapist. Yes, you are. You are asking me so many couple related questions. Because you got reason. मुझे ही नहीं पता है अभी तक. Lot of answers even I am trying to find, and you know, like even I'm very new, but मुझे सडनली लग रहा है मैं ऐसे कुछ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मस्त, आपने बोला एकदम मस्त चल रही है जिंदगी, तो मस्त चल रही है मतलब कुछ तो क्रैक कर लिया होगा. तो जो क्रैक किया, मुझे बताओ, फाइट अगर होती है कपल्स में, तो क्या नहीं करना चाहिए? अभी आप बोलोगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, बट वी डोंट फाइट मच. क्या लगता है आपको, क्यों आपकी फाइट्स नहीं होती? छोड़ यार, ये टेबल ही मारो मेरे साथ. I'm just gonna keep my hands here and be like, touch wood. देखो यार, I'll tell you fights क्यों होती हैं. Let's break it down, right? Fights क्यों होती हैं? Fights will happen if you have expectations that are not fulfilled.
which is unrealistic expectations or something not communicated. Second reason would be that you do not do what is expected out of you. एक तो तरफ यहाँ से नहीं हुए, या फिर you don't live up to what you have promised that you will live up to. Insecurity, lies, deceit. इसके अलावा and difference of opinion. इसके अलावा I don't see why a fight would happen, right? And largely I would say, in my opinion, 60% जो fights होती हैं वो expectations के वजह से होते हैं. कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि तुम मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करोगे, पर तुम तो संडे को भी काम कर रहे हो. नाउ वी बोथ, लाइक आई सेड, डोंट सेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वी नो कि हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि संडे भी हो सकता है, हम अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पे साथ नहीं होंगे, right? Because I am shooting on an outdoor and he understands that he could have turned around and said कि तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे, but because he is also a producer, he knows कि जब outdoor पे हैं तो छुट्टी नहीं ले सकते, पूरा crew थोड़ी wait करेगा. Does he still surprise you? Yeah. क्या? Okay, tell me, after marriage, surprises. Do you like surprises? I'm not that, oh my god, I love Really? surprises. I'm not that girl. But I like surprises. I mean, I appreciate surprises. So I was speaking to another actress here only on the podcast, and she said कि यार don't surprise me. Like ऐसे नहीं है, like आधी रात में तुमने बोला okay कल अब हम I would love it. हम like दुबई जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, एकदम रातों रात मेरे को मत बोलो, ये surprises मत दो. Like I want to be organized and planned. No, I can organize in that 3 hours. अच्छा, oh. I'm very quick like that, but I would love it. So you like spontaneous plans? I love spontaneous plans. As long as you know my schedule. ये नहीं कि मैं शूट में और तुमने बोला कि चलो कल जा रहे हैं, so I'm like, वो नहीं हो सकता. Obviously. But as long as you know कि हम free हैं and you've done something, I would really appreciate it. And ऐसा क्या ही चाहिए ना? See, I'm not, like I told you, I'm not somebody who wants to get ready. If you see me on holidays, I will not, the pictures I've posted of my New Year vacation, I'm not wearing makeup in any one of them. मुझे कुछ नहीं करना है, 4 कपड़े रखने हैं, बैक पैकिंग, जिम के जूते, चलो let's go. And you can always pick up anything that you've forgotten. I feel like these joys of spontaneous trips and the memories and the moments don't come back again. So I would like it. Interesting. It's sweet, na? Matlab, I feel he's better with surprises than I am. Oh, तो आप बेकार हो? मैं बेकार हूँ इस बार. क्यों? I'm like, जो है इधर ही है, यही है, मुंह पे है. देख ले यार. तू कर सरप्राइज. इतना काम मत करा. मेरा इंटेंशन समझो, इंटेंशन बहुत अच्छा है. वही तो समझ रहा हूँ. बढ़िया. ये एफर्ट मत डलवा ज़्यादा. हाँ, एफर्ट नहीं, एफर्ट तुम करो. अच्छा. Do you want him to put efforts? Do you like that? A lot of women love that. नहीं, ऐसा नहीं है. I mean, of course, little chivalry, little effort is nice. लेकिन यार हमारे holidays सारे मैं plan करती हूँ. ठीक है, so I'm the planner. He is the one who surprises. हाँ, तो he is the spontaneous one. क्या? Yeah. In your work कि आपको हर दिन एक fancy dress में दिखना पड़ेगा, एक fancy attire में. You have to be well dressed. You have to be well dressed. But there's a lot of pressure ना कि अगर आप, let's say there's some GQ night or some Filmfare night. See, those are events. You have to like appear. Of course. रोज तो एक event होता है. Those are events. रोज नहीं होता है. तो हम महीने में 2-4 होते हैं. हाँ, महीने में 2 मान लो. तो साल में 24 times you have to look way different than everyone else. Yeah, but then there's a team to do that. आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें. How expensive is that? It is expensive. It is expensive. Now, of course, it's different, right? A stylist can start from 20K for a red carpet to 1 lakh for a red carpet or even more. तो depend करता है. And then you only pay for the stylist. नहीं, you pay for the stylist and then this whole photography system that has started. जब आप photographs कराते हो तो आप photographer को pay करते हो. Yeah, that's about it. It's about 30. Then your hair and makeup team. But largely क्या होता है कि with me that my hair and makeup team is the same in-house for the last 6 years. Right, my films, my magazine, anything. मतलब I don't work without them. तो वो फैमिली की तरह बन गए हैं. तो फिर मुझे एक आधे इवेंट पे भी जाना होता है. तो it's not like they are going to ask for anything, you know. So it's, but largely your hair and makeup, your entourage is your styling and your photography. How big is your entourage अभी? Like full time कितने लोग हैं आपके साथ? Full time मेरे साथ 3 लोग रहते हैं. Hair, makeup, assistant. जब मैं शूट कर रही हूँ.
These और are like जब on payroll, like proper salaries में ये लोग. नहीं सैलरीज किस Oh, it's per day. ये डे का दिस इज व्हेन आई एम शूटिंग which I said when I'm shooting I will have a hairstylist, makeup artist, one assistant. I don't even keep security that often unless it's a crowded area because मुझे लगता है ना जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मैं नहीं संभाल सकती. They are supposed to संभालो me but I just don't like too many people around. Okay, and then you don't have to pay the designers जो आपके लिए ये Stylists of course. नहीं स्टाइलिस्ट को पे करोगे बट स्टाइलिस्ट फिर सोर्स करेंगे बिकॉज you're wearing it. You're wearing it, so you're like a so what stylists do is they take a fee जिसमें उनका कोरियर असिस्टेंट्स उनके जो भी लोग रनर्स हैं वो सब कवर हो जाए और उसके बाद वो विच इज वाई अगर आप इंटरनेशनल डिजाइनर पहन रहे हो तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है बट वही लोग फिगर आउट करते हैं वो सब फिगर आउट करते हैं तो डिजाइनर से जितना कोलैबोरेशन करना है वो फिगर आउट कर लेंगे वो फिगर आउट करते हैं एंड डिजाइनर्स ऑलवेज गिव आउट क्लोथ्स बिकॉज यू नो द क्लोथ्स दैट एक्टर्स वेयर देन वो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होते हैं देन द सेल्स गो अप फॉर दोज क्लोथ्स सो and if you like something then you buy it. So what happens is I lot of time मैं shopping करती हूँ from the sourced clothes. जैसे मैं एक fitting कर रही हूँ और मेरे लिए मतलब 50 कैजुअल कपड़े आए हैं एक ब्रांड की शूट है और मैंने यूज 5 करने हैं एंड मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आई है तो वो एक यू नो ऑलरेडी स्टाइल्ड चीज़ें मिल रही हैं नॉट लाइक आप मॉल जा सकते हो या आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे आई ट्रैवल आउट ऑफ कोर्स आई डू इट बट मुझे ना बहुत सारे कपड़े देख के भी कंफ्यूजन हो जाता है लाइक आई सेड आई एम नॉट दैट गर्ल मुझे लगता है कि जो डमी पे है वो मुझे दे दो तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन आते हैं तो देन आई लॉट ऑफ टाइम शॉप फ्रॉम इट क्योंकि मेरा साइज है आई डोंट हैव टू ट्राई आई डोंट हैव टू ट्राई टू फिटिंग कराओ ये कराओ जूते अरे ये बहुत अच्छे हैं आई सो लॉट ऑफ टाइम्स आई बाय ऑफ शूट सोर्सिंग थिंग्स तो जो आते हैं फिर लाइक अच्छा लग रहा है बट क्यों खरीदना पड़ता है वो फ्री में दे देते होंगे ना आई डोंट लाइक दैट ethically I don't like it क्योंकि कभी I don't like that ethically same so I do the same thing कि जब भी हमारे पास क्लोथ्स आते हैं कुछ भी I buy them because मैं मेरी टीम को बोलता हूँ कि ना free is more expensive than money so I just don't want free things क्योंकि I agree free is more expensive and why should you मतलब छोटी सी चीज़ है यार आपको पहनना है तो खरीद लो ना और आप जब नहीं अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड सो आई एम अ बिग बिलीवर ना मैं दोस्तों से कुछ फ्री लेता हूँ ना मैं एटलीस्ट किसी का बिजनेस देयर आर नो फ्री लंचेस आई डोंट लाइक इट आई एम लाइक एज अ फ्रेंड तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम खरीदो ही खरीदो क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ेगा तुम खरीदो उससे क्या फ्री में मांग रहे हो एंड देन जो डिजाइनर अगर बहुत पसंद है उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं कुछ है विच इज नॉट लाइक इवेंट में मैं अगर पहन के वापस दे रहा हूँ इट्स अनदर थिंग बट जो मैं रखना चाहता हूँ देन आई वांट टू बाय ऑफ कोर्स यू कांट जस्ट कीप इट हाँ मतलब जस्ट बिकॉज और फिर मैं उसके बारे में और फ्री में बात भी करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लगा कि यार मुझे लाइक आई वांट टू बाय इट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट करेक्ट सो दैट्स व्हाई I like it more. Yeah. But I was asking how is for you guys? No, similar. मतलब if I like something of a designer तो फिर बोलती यार मेरे पास ये आया था I'm going to buy it तो मुझे invoice भेज दो मैं खरीद लेती हूँ. PR VR like how much you guys have to pay for the like every month people pay 15, 20, 30 lakhs तक. Yeah, that depends on how much media you are buying. I don't believe in buying media. अच्छा. मतलब but ऐसा आजकल relevant होने के लिए जरूरी नहीं है ऐसा लोग. मतलब खुद ही खुश हो रहे हो कि आपने खुद पैसे दिए और फिर आप खुद ही खुश हो रहे हो कि देखो मैं कितना दिख रही हूँ 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स में वाह हाँ मतलब देखो ये लोग मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं बट पता चले कि आप खुद ही कमेंट करा रहे हो मतलब दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू नो आई डोंट एस्पायर टू बी दैट पर्सन आई एस्पायर टू डू गुड वर्क बट आई एम नॉट इन अ रेस विद एनीबॉडी बट डू यू थिंक यू गेट बिगर अगर आप ये सारी चीजें करो तो लोग आपको ज्यादा काम देते हैं ज्यादा आपको पहचानते हैं यार मुझे लगता है कि लोग आपको तभी काम देते हैं जब आप अपना पोटेंशियल प्रूव कर रहे हो आप इतने सालों से बहुत लोग आते हैं बहुत लोग PR करते हैं 4-5 साल PR चलता भी है फिर फेड हो जाते हैं अगर आप 10-12 साल से काम कर रहे हो आई स्टार्टेड इन 2012 कुछ तो होगा ना दैट पीपल आर लाइकिंग एंड आई नो दैट व्हाट दे लाइक इज दैट आई एम ऑनेस्ट विद माई वर्क आई एम नॉट इवन सेइंग कि यू नो मैं क्या काम करती हूँ वो लोगों को डिसाइड करने के लिए आई फील मुझे कुछ नहीं आता मैं रोज़ लर्न कर रही हूँ बट आप कितनी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन और ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हो इज व्हाट पीपल लाइक आई फील लाइक यू शुड बी ईजी टू वर्क विद शुड बी प्लेजेंट यार साल में फिर अगर आप एक फिल्म कर रहे हो आप 90 दिन किसी की शक्ल देखते हो और फिर आप डबिंग पे देखते हो फिर आप पोस्ट पे देखते हो फिर प्रमोशन पे देखते हो इफ यू आर नॉट प्लेजेंट नोबडी विल वांट टू वर्क विद यू अगेन पर वी ऑल नो कि सोशल मीडिया के नंबर्स देख के कोई कितना रेलेवेंट चल रहा है उस पर देख के लोगों की कास्टिंग होती है पीपल डिसाइड लेफ्ट राइट सेंटर टू डू यार आई डोंट थिंक सो ये मुझे एक और जगह भी पूछा गया था क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक कि
लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया की जितनी फॉलोइंग होती है ना, वो फुटफॉल्स में कन्वर्ट नहीं होती है. फेयर, राइट. बट न्यू मतलब नॉइज ज्यादा बना दोगे ना, तो नॉइज ज्यादा बनाने के लिए पीपल डू दैट. बट फुटफॉल्स, बट पीपल विल अल्टीमेटली, हु स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इज द पर्सन जो डिलीवर कर रहा है. लाइक आई सेड, आप देख लो ना पहले कितने एक्टर्स आए. आई एम नॉट गोइंग टू नेम स्टार्स, ओवरनाइट स्टार्स 2-4 साल चले और फिर नहीं चले. किसी में एटीट्यूड इशू होगा, किसी में शायद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, किसी में डिसिप्लिन नहीं होगा. अल्टीमेटली जो लोग सब कुछ साथ में लेके चलते हैं ना, वो लोग लाइक शाहरुख सर, सलमान सर, अजय सर, दे हैव ऑल लाइक बिन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स. अक्षय सर, ऐसे ही तो नहीं हो जाता है. सो दैट इज नॉट सोशल मीडिया. दे वर इवन एग्जिस्टेंट जब सोशल मीडिया भी नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे. ऐसे नहीं होता बहुत बार कि कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस को लॉन्च किया जाता है विथ अ बिग PR मशीनरी. पहले आपको पसंद नहीं आते क्योंकि मे बी उनकी परफॉर्मेंस फ्लैट थी या वो कुछ भी, फिर आपको फीड कर दिया जाता है, आपको बार बार दिखाया जाता, चलो फिर अच्छा चलो इतनी भी बेकार नहीं है ये, इतना भी बेकार नहीं है. एंड देन फिर धीरे धीरे यू एंड अप लाइकिंग दैट पर्सन क्योंकि आपको इतना फीड कर दिया 3-4-5 साल में कि ठीक है. Yeah, but that happens. Like full money and PR machinery pumping in that they become stars. Yeah, but that's fine. I mean, they have the money to pump. So then okay. isn't that better कि बहुत लोगों को फिर करना पड़ेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yeah, देखो, it also comes with आप कहाँ से आ रहे हो और आप कैसे कर रहे हो, right? Like I said कि मैं मतलब I come from a middle class family, army, salaried. मेरे पास नहीं थे पैसे मतलब to do all of that PR. मुझे फर्स्ट फिल्म के टाइम तो ये भी नहीं पता था कि PR लेना होता है. अब नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लाइक लॉन्च के टाइम पे मुझे नहीं पता था पब्लिसिस्ट लेना होता है, मुझे नहीं पता था स्टाइलिस्ट लेना होता है. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ओ आई एम गोइंग टू स्पेंड 20,000 अ डे फॉर जस्ट स्टाइलिंग. इट्स अ बिग डील. टुडे आई कैन अफोर्ड इट एंड टुडे आई हैव इट. बट टुडे अगेन माई लेवल ऑफ अफोर्डिंग इज, मैं नहीं हूँ वो एक्टर जो साल में 2-3 करोड़ अपने PR पे खर्चेगा. आई एम नॉट दैट पर्सन. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से आ रहे हो. आप अगर फैमिली ऑफ एक्टर्स से आ रहे हो एंड यू हैव दैट फाइनेंशियल बैकिंग, यू विल डू इट. आई स्टिल समवेयर इन माई हार्ट एम मिडिल क्लास एंड आई एम लाइक नो, मतलब जितना ज़रूरी है उतना करो. वी ऑल हैव PR एजेंट्स एंड यू हैव अ सर्टन फी दैट यू गिव देम पर मंथ, बट बियॉन्ड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ठीक है मेरी लॉटरी लगवा दो मैं भी खर्च दूंगी उतना, बट हार्ड ऑन मनी के ऊपर मैं नहीं खर्च सकती उतना. बट यू डोंट बिलीव कि जितना हार्ड अर्न मनी है फिर को रीइन्वेस्ट करके मार्केटिंग में और बड़ी करूँ तो मे बी आई विल एंड अप, और यार पता चल जाता है काम बढ़ेगा मेरा. आई फील कि बहुत कोई आपको PR के वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं देगा. Fair. That's what I'm saying today. And Alia Bhatt is an Alia Bhatt not because of PR but because she performs well. Today a Deepika Padukone who's not from the industry has stood the test of time, और वो इतनी बड़ी स्टार है because she has been consistent and she has been growing. And जिन भी एक्टर्स के ऊपर आप बोल रहे हो कि वो PR कर रहे हैं, ऐसा आप you also know, I also know, we all know. So it's not that audiences don't see it. सब दिख जाता है आज के एज में, बल्कि ज़्यादा दिख जाता है बिकॉज सोशल मीडिया, डिजिटल, ये वो, लोगों के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के देख लेते हैं कि ये ऐसा बोला, फिर ये ऐसा डाला, अच्छा ये तो पेड एक्टिविटी है. कैमरा अंदर लगाया कि कैमरा बाहर लगाया, लाइक पीपल रियली कमेंट देख लेते हैं, कमेंट किसने किया उसका अकाउंट देख के उसकी फॉलोइंग देख लेते हैं. बहुत वेले हैं लोग यार. सो आई फील दैट ऑडियंसेस सी इट थ्रू. काम करो ना यार, जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं वो काम करो. गो ऑन टाइम, लर्न योर लाइन्स वेल, डोंट थ्रो एटीट्यूड, डोंट थ्रो टैंट्रम्स, वर्क वेल, एंड दैट्स इट. लिव योर लाइफ. इनफैक्ट आई फील कि अब वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसका ऑर्गेनिकली भी अगर किसी को पुश मिलता है, बहुत फट जाता है, वायरल हो जाता है, लोगों को लगता है ये ऑर्गेनिक भी पेड ही है कि भाई कैसे करवाया होगा. या एब्सोल्युटली. बट ऐसा नहीं होता है. लोगों को लगता है कि लोग पैप्स बुलाते हैं. बैंड्रा में कैसे कोई सैलून जाते हुए पैप्स नहीं बुला रहा है भाई, एटलीस्ट मैं तो नहीं बुला रही हूँ. सो आई एम लाइक व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट द हाउस they just follow, and sometimes because there is so much paid PR people think सब बुलाते हैं, but ऐसा नहीं होता है. मुझे कोई शौक नहीं है बुलाने का, बिकॉज मुझे कोई शौक नहीं है रेडी होने का. नहीं, इसे बुलाते ही है ना लोग. नहीं बुलाते हैं. You call those people and be like you. No, some people call for airports. If there airport, gym. नहीं, जिम में नहीं बुलाया मैंने आज तक. जिम में नहीं बुलाया. Some classes, restaurant, Bastion, Soho House, all of these places. So allowed नहीं है, but never at a restaurant have I called.
Never. You're with your friends, you sometimes just want that time. But I'll tell you what happens, because Bandra utna hi hai. And there's a network of PAPs and they're also doing their work, right? अब बैफ की गाड़ी बैंड्रा से, एक बार मैं स्किन डॉक्टर के पास जा रही थी, मेरी गाड़ी बैंड्रा से निकली, मैंने बोला भैया फॉलो करना बंद किया, बिकॉज यू नो आई वांटेड टू गेट अ क्लीन अप डन, आई डोंट वांट टू बी फोटोग्राफ्ड लाइक दैट. सो वहाँ से गए, हाँ ठीक है, उन्होंने फ़ोन कर दिया जूहू सर्कल वाले थे, सो दे हैव दिस होल नेटवर्क, वो लोग पहुँच गए. Then I requested, and they always listen. If you request कि यार please अभी नहीं. With my back and all, when I was recovering, so many times they caught me, but they didn't cover. So they will catch you because they know the car numbers. A lot of times उनको गाड़ी नंबर पता है, आपकी गाड़ी दिख जाए तो कभी कभी my driver also say नहीं भैया हैं, नहीं मतलब my younger brother या sir हैं या ma'am हैं, वो नहीं है गाड़ी में. So sometimes that also happens. Oh. Okay, you started your career with Femina Miss India. Correct. Right? You won that? I won Miss India People's Choice, and then I won 4 other titles, which were Beautiful Eyes, Beautiful Smile, Fresh Face and Miss Talented. सारे. हाँ वो उस, और फिर Miss India People's Choice जीती थी मैं. तो इससे इजी होता है क्या मूवी बिजनेस में आना? ईजी नहीं होता है, बट आई फील लाइक पीपल सडनली नो कि अच्छा ठीक है आपने कुछ तो किया है, कुछ क्रेडिबिलिटी है, तो शायद आपके पहले फ़ोन नहीं बट तीसरे फ़ोन को आंसर कर देंगे. आज भी है तेरा रेलेवेंस उनका? नहीं, मतलब उनका पैजेंट्स का यू सेइंग, आई डोंट नो, आई फील इट्स लॉस्ट द चार्म. क्यों? आई शुडंट बी सेइंग दिस. क्यों मतलब जो रियलिटी है you can say about. I just feel, I don't know, when we were growing up, I used to watch every episode of Miss India. Like every year I used to follow contestant select हुए, ये हुआ वो हुआ, I was enamored by it. लेकिन I feel now today it's not that Miss India is doing anything wrong or the pageants are doing anything wrong. There are so many different things and distractions कि उस टाइम खाली एक चीज़ होती थी. अब सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, आप मतलब ग्लोबली किसी भी स्टार की लाइफ देख रहे हो सकते हो, तो आपको अननोन लोगों की लाइफ क्यों देखनी है? यू नो उस टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि ये स्टार बनेगी कल को, अरे मुझे देखना है मिस इंडिया कौन बन रहा है. अभी तो सब मतलब कोई काइली को फॉलो कर रहा है, कोई मतलब किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई ग्लोबली सब क्या दुनिया में चल रहा है, यू कैन यू नो. सो आई फील लाइक देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस. बट इज इट ऑल्सो बिकॉज आई फील कि पहले ना 1-2 ही होते थे तो बहुत चार्म था. अब हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना एक पैजेंट खोल दिया है, हर मीडिया कंपनी ने या ब्रांड ने या FMCG कंपनी ने. मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया तो एक ही है फिर भी. पर अब कितने नाम बहुत सारे हो गए ना, लाइक एज एन आउटसाइडर. फेमिना मिस इंडिया पता होता, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं है. हाँ, मुझे पता है कि मिस इंडिया क्या है, मिस यूनिवर्स क्या है, राइट? उसके अलावा अब आजकल कोई मिस XYZ नेचुरल, कोई डीवा, कोई ये, कोई टीन, कोई मॉडल, हमें नहीं पता ना. वैल्यू नहीं है यार. मतलब आई फील वो भी है, देयर इज जस्ट टू मच ऑफ एवरीथिंग, सो यू लूज इंटरेस्ट. तो आज किसी को अगर एक्टर बनना है, दिस इज नॉट द राइट वे. नहीं ऐसा नहीं है. सी लाइक आई टेल यू, इट्स नॉट लाइक एवरी कंटेस्टेंट ऑफ द पैजेंट हैज टर्न्ड इनटू एन एक्टर. यू टेल मी लास्ट 5-7 years 10 years who has won, who has turned out into an actor. In fact, I was not in the top 3. I was 4th. I was 3rd runners up, and there's nobody else I think who's acting from my batch, right? So I feel कि ये सा कोई hard and fast rule नहीं होता है. Very important is that of course it is a road less traveled and a difficult path, because मैं ऐसे होती थी कि 100 बार फ़ोन कर दिया, नहीं उठाओगे ना तो मैं 100 बार फ़ोन कर देती थी कि ठीक है कोई तो उठाएगा ना. And then you'll keep messaging. So people will at least respond for your perseverance and your dedication. कि अटली यार इतना कर रही है, ठीक है हेलो हाँ say what is it. एटलीस्ट कोई ऐसे ही बोलेगा. Because when you're a nobody, why will people answer, right? So I'm saying it's also destiny, it's also luck. बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. कोई एक प्लेटफॉर्म आपको ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस देता है. इट शेप्स यू इनटू, लाइक व्हेन आई वेंट फॉर द पैजेंट I didn't know anything. मतलब मुझे ये नहीं पता था कि how to style myself. I didn't know anything. So I learned so much there. So it sort of grooms you a little. And then of course everything else I learned on the job. You know, I grew on the job. Grew on the set. On set, on job, finesse, styling, just how to conduct myself. Whole very special. You worked with a lot of these big superstars as well, and you've learned, I'm sure, a lot from them. Yeah. One of them is Mahesh Babu. Yeah. What's special in him? What do you think? I think क्यों वो इतने बड़े हैं?
I think he's just very hardworking, yeah. Very hardworking, very like observant, and he has this whole. You know what I love about him is that him and Namrata are such a beautiful couple. Such a beautiful couple. Like they've split responsibilities. She will also be involved in a lot of things to do with his work, and how family oriented he is, and still like looking at collective growth for everyone. Like it's very nice. So you feel कि बहुत family oriented and hardworking is what makes him. Yeah. And you were, when we were talking about PR, you took Akshay Kumar's name, right? And Akshay Kumar phenomenally, right? वो 50 पिक्चरें करते हैं back to back, and he stood the time. He's been relevant over the years. What do you think? Why Akshay Kumar is the Akshay Kumar? Discipline. When we were working on Katputli, and I've known Akshay sir closely, because when you're working, you're spending time. I think the kind of discipline and dedication he has, and he's very basic. He's like, मैं काम करता रहूँगा, and rightly so. काम से ही काम आएगा ना. Why should I stop working and why should I get into these strategies? कुछ ना कुछ तो चलेगा. He loves working. It's not like he's trying to do it. He loves to work. You know, he doesn't know anything else besides being on set, and he enjoys it. And discipline, like in the morning he'll wake up at 5, he'll be working out. So because I also wake up in the morning and I would also work out, so I would see him, and he will not eat after 6:30 when he's shooting. His dinner will finish largely on days by 6:30. So I feel like there's a reason why he has that level of fitness even today, that energy, that enthusiasm, because he's discipline, all of that. And what's in Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan sir is the epitome of discipline and worshipping your work. Like if you say work is worship, Amit ji वो इंसान है जो इस बात को मतलब प्रूव करते हैं. हम लोग जब रनवे 34 शूट कर रहे थे, एक बार सेट पे वो 1 घंटा जल्दी आ गए, ठीक है. तो अजय सर के पास, अजय सर वाज डायरेक्टिंग दैट, तो वो आके सेट पे कुर्सी लगा के बैठ गए. सर ने बोला कि आपका तो 11 बजे का कॉल टाइम था. ही सर हाँ, पर मैं सुबह डबिंग नहीं कर रहा था, मैंने सोचा यहीं आके चिल करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब चिल नहीं करता हूँ, मतलब मैं यहाँ आके बैठता हूँ बिकॉज मैं ना ऑब्जर्व करूँगा. ही लव्स हिज वर्क सो मच. एक हमारा ना सेकेंड हाफ का ना 21 पेज का सीन था, डायलॉग विद दैट होल कोर्ट का कॉन्फ्रंटेशन. उनको फर्स्ट डे से एंड तक डायलॉग्स पता थे, बिकॉज वो एक फ्लो है कैरेक्टर का. सो आई फील वो मुझे एस्पायर करना है. मुझे ये पेड पीआर और ये सब चीजें नहीं एस्पायर करनी. मुझे वो लॉन्जिविटी एस्पायर करनी है. मुझे आज स्टार नहीं बनना है, मुझे हर जेनरेशन के लिए स्टार बनना है. That's somebody on the podcast said, another co-actor who has worked with Amitabh sir, he said कि जब आप अमिताभ बच्चन के साथ काम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 18 साल के बच्चे नया नया इंडस्ट्री में, तो भी आप उनकी एनर्जी बीट नहीं कर सकते. आप में वो, उनका इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी आप में वो पैशन, हंगर, ड्राइव है ही नहीं जो उनमें है उस एज में. और एज छोड़ो, उनमें वो एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट कि मैं देखो अभी मतलब देखो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होती है. कैसे हम एक नई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और लगता है बड़ा मज़ा आएगा, उनको रोज़ ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा मज़ा आएगा, अभी करेंगे. आई रिमेंबर एक दिन पैकअप हो गया 5 बजे 6-7 बजे जो भी, तो उन्होंने बोला कल की मार्किंग कर लें. तो अजय सर ने बोला सर आपको घर नहीं जाना होता है, मुझे तो जाने दो, मतलब कल करेंगे. यू नो, सो ही इज दैट इन्वेस्टेड इन व्हाट ही इज डूइंग. यार वही चीज़ है ना, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट जनरेशन ऑफ एक्टर्स, एंड इट एंड्स विद अजय सर एंड शाहरुख सर एंड आमिर सर एंड वो जो अक्षय सर, इन सब की जो लेगेसी, उसके बाद दैट इज द जनरेशन ऑफ एक्टर्स जिनको ईजी नहीं मिला है. वो लोग 10-10 फिल्में एक टाइम पे करते थे, कुछ चलती थी कुछ नहीं चलती थी, ये होता था, सोशल मीडिया नहीं था. उन्होंने बहुत मेहनत करके 30-30, 35-35 साल का करियर बनाया है. Whether you look at a Shahrukh sir story or you look at Salman sir story, वो भी बहुत ऑडिशन करते हैं, या जिनकी भी, right? There is a lot of hard work, and I feel उस टाइम लोगों तक रीच होने के लिए और ज़्यादा फिल्में लगती थी, क्योंकि
पेपर में आता था ना, कोई एक सिनेब्लिट्स में आ गया या कोई एक फिल्म फेयर में आ गया या ऐसे वाली, ना थिएटर्स होते थे, ना इतना थिएटर्स ना पैसा होता था। चले जाएं। जब आपकी फिल्म दूरदर्शन पे आएगी या जब आपकी फिल्म टीवी पे सेट मैक्स पे आएगी तब लोगों तक एक रीच, मैं बोल रही हूँ इंटीरियर्स में जो रीच, तो उन्होंने बहुत साल मेहनत की, सो दे हैव नॉट गॉटन इट इजी, दे ऑल वैल्यू देयर वर्क। आई फील जो यंगर जनरेशन है ना, एंड मतलब इवन दो आई एम यंगर जनरेशन, मेरी जो कंडीशनिंग है वो साउथ में हो गई थी, राइट, बिकॉज वहाँ पे मैंने सीखा, एंड वहाँ भी उसी तरीके से चलता है, राइट, आप बहुत वैल्यू करते हो अपने, और वहाँ PR नहीं है, सोशल मीडिया का इतना नहीं है, इट्स द ओल्ड स्कूल वे। आई फील कि यहाँ पर हम लोग, नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल फील कि ओवरनाइट दिस, बाइंग फॉलोअर्स, डूइंग दिस, ऑल ऑफ दैट कैन मेक यू अ स्टार। ऐसा नहीं होता है। बड़ी वेस्ट ने सिखाया है, like this usually क्यों सीख रहे came हो? from क्यों सीख रहे हो? But I'm saying like, क्योंकि फॉर्मूला बहुत लोगों ने वर्क किया है इसलिए सिखाते हैं, तो मे बी चलो मान लो बहुत नहीं तो कुछ पे वर्क किया है, तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि इजी वे आउट मिल रहा है, कुछ कर लेते हैं। या बट इजी वे लाइफ में कभी लॉन्जिविटी नहीं लाता है, मे बी, या आई फील दैट्स माई बिलीफ, जिसके लिए भी चले बहुत अच्छी बात है, बट आई फील दैट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलता है, एंड ऑनेस्टी विद योर वर्क एंड विद योर सेल्फ। किससे झूठ बोल रहे हो आप? बट पता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज वन पर्सन हु इज अ जनरेशनल सुपरस्टार, इट्स कॉल्ड शाहरुख खान, राइट? He is amazing. I don't know, I'm a big fan I'm of Shah Rukh Khan. huge Shah Rukh sir fan, and look at that, the way he talks. Matlab, I just admire that sense of humor, that humility he still has, and matlab, he's amazing. There are multiple factors I feel that work for him. Of course, the films that he's had, the legacy he's created with those films, क्योंकि आप बिना अच्छे films और success के नहीं create कर सकते, right? तो he's had the cults of the cults, मतलब DDLJ आज भी cult है, हर generation के लिए cult है। अच्छी मूवीज थी। अच्छी और cult में बहुत difference होता है। मतलब I'm saying DDLJ 90s, 2000, 2010, 2020 चारों decades में जो भी पैदा हुआ उसको DDLJ के बारे में पता है। So that's a cult film, like what a Sholay was, right? There can be good films, like, so he's had many cult films, right? And beyond that, I think his story of, you know, coming from outside, doing it on his own, then the family guy that he is, and the chivalrous man that he is, the दुनिया सब देखती है. I think I don't know another person who will walk you to the door and still open. I've heard incidents where, you know, he'll just drop you to the car, he'll still keep talking to you. He's very aware of कौन मुझे बोल रहा था कि वो जब आपसे बात करते हैं ना, तो वो चाहे आपसे 10 सेकंड के लिए बात करें, वो उस 10 सेकंड में सिर्फ आपको इतनी अटेंशन दे देंगे कि आपको लगेगा कि ये मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ उनके लिए. And I think that is amazing. Yeah. You know what I also love about him is this sweet little confidence he has on himself. I love it. That just is and so good. with like a sass of humor, like a arrogance, like sweet there's arrogance. Not arrogance. There's like there's a sweet arrogance. Confidence. That's love it. No, I think it's not. See, arrogance is very misconstrued. I feel like it's more self-confidence. So but much. You're taking it negative way. I'm taking it in a positive way. Like the little जो आता है ना कि मेरे को पता है मैं कौन हूँ. मुझे पता है. Basically मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ, like मैं अपना फेवरेट हूँ. मुझे खुद पे भरोसा है. Like I have that confidence on me. मैं कर लूँगा. Yeah. हो जाएगा. Yeah. Do you have any insecurities? कभी थी पहले? यार insecurities I think बचपन में तो सबको ही होती हैं. बचपन नहीं, मतलब when you start out. But I don't think I was a very insecure person. In general, I'm not an insecure person. But कभी भी नहीं थी. मैं हमेशा से अपनी फेवरेट हूँ. मैं बता रही हूँ ना, मुझे लगता था कि मैं बेस्ट हूँ. Nice. मैं बेस्ट हूँ, एंड आई थिंक माई पेरेंट्स ऑल्सो फेड दैट इन मी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब. उन्होंने कभी ऐसा वो बोलता है ना कंपैरिजन में बोला या कुछ, कभी भी सबकॉन्शियसली भी ऐसा कुछ नहीं बोला. सो आई ऑलवेज न्यू. इनफैक्ट आई टेल यू दिस वन थिंग कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और लोगों ने बोला कि यू नो इट्स नॉट ईजी, तो मुझे लगता था क्या बोल रहे हैं, मैं मेहनत करूँगी मिल जाएगा. सो मेरे लिए ना 2+2 = 4 होता था. I was a very naive kid, and you know how cantonment grown up kids are, like very naive kid. So I was like मेहनत करूँगी मिलेगा, एफर्ट डालूंगी मिलेगा. सो मेरा उतना ही मैथ था.
So sometimes when you don't know too much, It's good. it's good. That innocence and that naiveness and that is what you call manifestation. क्योंकि आपने in a sense manifest कर दिया है कि मुझे तो पता है मुझे मिलेगा क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ. तो मेरा उतना ही simple होता था. And when you get too much information and you're just downloaded with too many things around, then you get corrupt. Yeah. So my endeavor is to not get corrupt. That's actually very good thing. You know, Irfan Khan sir said this once कि an intelligent person can have everything, but he cannot beat the innocence of a beginner. Yeah. What a beautiful line. And it's so true. Yeah. So you're just talking about that कि हाँ मैं innocent. Correct. मतलब मैं थी और innocent थी तो जीत गई. और मैं अगर अभी भी चाहती हूँ कि मैं कई बार सोचती हूँ कि can I go back to that level of belief? It's tough. नहीं जा सकते because उस टाइम मुझे था हाँ मैं ऑडिशन दूंगी क्रैक करूंगी, बट अब मुझे लगता है कि अगर मुझे सेम चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे पता है, एंड आई डोंट थिंक वो इनोसेंस दोबारा कभी आ सकती है. सो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट इट एज मच, विच इज़ वाई मुझे ना गॉसिप करना पसंद है, ना मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना नहीं है, बट देन यू स्टिल नो, यू नो. Yeah, so I love that line. It's a very beautiful line. Yeah. Well, thank you so much for doing this. Thank you so much. It was pleasure. Wow. हमें भी बहुत खुशी हुई आप आए. Thank you. मुझे भी. I'll tell you something very funny. So I had a keel here. So a lot of people told me ये क्रीम लगा लो, वो कर लो, ये इंजेक्शन ले लो. तो मुझे इंजेक्शन वगैरह नहीं, but all the creams I tried. Then I met a healer. जिसने बोला कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. The day you'll find somebody, this will go. And I'm not kidding. It's not there anymore. Wow. You can see it for proof. मेरे 7-8 साल पुराने वाले फोटोज़ में वो है. वो कैजुअली कहीं खिंचे हुए फोटोज़ होंगे या इवेंट के फोटोज़ होंगे, यहाँ पर है. एंड वो खुद ही डिसअपेयर हो गया. Wow. Like for real. कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ऐसे बर्न नहीं करवाया? I don't even know वो कब गया. मैं तो भूल भी गई थी because वो it became a part of me, you know. And suddenly once I realized when I was in the dating phase कि ये कहाँ गया यार? And then I realized उन्होंने क्या बोला था. This is insane. It is insane. Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.